إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج کی اس مجلس میں اللہ کی توفیق سے کچھ اعمال کی طرف میں یاد دہانی اپنے سامعین کی کرانا چاہتا ہوں، جن عملوں کی برکت سے ہماری آخرت یقیناً محفوظ ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سینکڑوں کام بتائے ہیں جن میں سے کوئی ایک کام بھی آپ اپنا لیتے ہیں تو کم از کم آپ کی آخرت کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے خالق کا وعدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ تو ایک مومن آدمی کو ایسے کاموں کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور اس طرح کے جو کام ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ کام اس کی زندگی میں شامل ہو جانے چاہیے۔ تو ہم اس مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو دیکھیں کیا آپ میں وہ باتیں ہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان پر برقرار رہیں، اگر نہیں ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں تو کم از کم ضرور چن لیں جس کے ذریعے آپ کے پاس جنت میں جانے کا محفوظ دروازہ تو ہو کم از کم، تاکہ آپ کے لیے جنتی بننے میں کوئی رکاوٹ تو کم از کم نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام آسان ہے، اس لیے آسان ہے، مومن چاہتا ہے وہ جنتی بنے اور اللہ چاہتا ہے کہ اسے جنت میں بھیجے، تو رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ یہ نہ چاہتا کہ ہم جنتی بنیں تو اللہ ہمیں جنت کے راستے کھول کھول کے نہ دیتا۔ اللہ نے جنت کے راستے کھول کھول کے دیے، نازل کیے، انبیاء کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے عملوں پر بڑے بڑے وعدے اللہ نے فرمائے، جس سے یہ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنتی بن جائیں، ہم جنتی بن جائیں۔ سستی ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہم اپنی سستی ختم کر دیں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ جنتی بننے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 40 خصلۃ من عمل بواحدۃ منہن رجاء ثوابها وتصدیق موعدها دخل الجنہ۔ 40 صفتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک صفت کوئی اپنا لے، 40 کام ایسے ہیں جن میں سے ایک کام کر لے، کرے رجاء ثوابها، ثواب کے ارادے سے، وتصدیق موعدها، اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، 40 نہیں، ایک کام، 40 میں سے ایک کام کوئی اپنی زندگی میں شامل کرے، ایمان کی حالت میں اللہ کے وعدوں کی پر یقین رکھتے ہوئے ایک کام کرے، ایک کام کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، ایک کام کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 کام
نہیں بتائے، وہ 40 کام آپ نے نہیں بتائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم اندازہ لگا کے گننے لگ گئے کہ کون سے کام ہیں جن کاموں کے کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہم نے سوچا کہ مثلا سلام کرنے کی عادت بناؤ، جب ملو ہیلو ختم، ہے ختم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہ ایک کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں، 40 میں سے ایک کام تو آ گیا آپ میں۔ باقی زندگی میں جب فون کرنا ہے السلام علیکم سے ابتدا کرنی ہے، جب دفتر جانا ہے السلام علیکم کے ساتھ جانا ہے، جب کوئی سلام کرے سلام کا جواب دینا ہے۔ 40 کاموں میں سے ایک کام سلام کرنا ہو گیا، ایک کام سلام کا جواب دینا ہو گیا۔ ایک کام، یہ صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں، ہم نے گنا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ جب چھینک آئے کہو الحمدللہ۔ جب کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہو اسے کہو یرحمک اللہ۔ الحمدللہ ایک کام ہو گیا، یرحمک اللہ کہنا دوسرا کام ہو گیا، یہدیکم اللہ کہنا تیسرا کام ہو گیا، یہدیکم اللہ کہنا تیسرا کام ہو گیا۔ ایک کام مثلا ہم نے یہ سوچا کہ راستے میں جا رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہے، آنے جانے والے کے پاؤں میں اڑ رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے، تو ہم اس پتھر کو ہٹائیں، سائڈ پر رکھ دیں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ ہمیں پتہ چلا فلاں مجبور ہے، بیمار ہے، اس کے حالات خراب ہیں، 4 پیسے جیب میں رکھو، جاؤ چپکے سے اس کے تکیے کے پاس رکھ کے آ جاؤ کہ یہ آپ اپنے دوائی علاج میں خرچہ کر لینا۔ ایک کام ہو گیا۔ مہمان آیا ہے، دروازہ کھولو، اسے بٹھاؤ، مسکراتے چہرے کے ساتھ چائے کی پیالی اسے پلاؤ، ایک کام ہو گیا۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، وہ رکوع صحیح نہیں کر رہا، پتہ نہیں 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، غلط رکوع کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، اسے رکوع کر کے دکھاؤ۔ یوں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ایک کام ہو گیا۔ کوئی راستہ بھولے ہوئے ہے، پریشان حال ہے، رک جاؤ، اس سے پوچھو کیا کہاں جانا ہے، اس کے اپنے ساتھ بٹھاؤ، وہاں چھوڑاؤ، ایک کام ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 40 کام ہیں جن میں سے ایک کام بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کرو تو جنت کی ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، جنت کی ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اب میں نے آپ کے سامنے انہی مثالوں میں 8-10 کام ذکر کیے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ ان 8-10 کاموں کو آپ اپنا لیں، ان میں سے ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نہ کر سکتے، اور ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں تو فقہی اختلاف ہو کہ فلاں علماء کہتے ہوں کہ سلام کرو اور فلاں کہتے ہوں کہ نہ کرو، فلاں علماء کہتے ہوں کہ مہمان کی خدمت کرو اور فلاں علماء کہتے ہوں کہ مہمان کی خدمت نہ کرو۔ یہ تو سارے کامن کام ہیں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو یہ کام پسند ہے، اللہ کے قرب کا یہ سبب ہے۔ اس مجلس میں اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں کہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ہم نہیں کر رہے۔ ایک کام اپنائیں اور جنتی بن جائیں، جن پر ضمانت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، اوپر کی منزل کے جو کمرے ہوتے ہیں محلات میں، انہیں غرف کہا جاتا ہے، غرفت ان کی جمع ہے، اور اوپر والے کمرے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، خصوصاً جب باغات میں اور سبزے میں ہوں، دور تک خوشنما منظر بندے کو نظر آتا ہے۔ اوپر کی معطر صاف ہوائیں، فضائیں، ہوا کی شبنم، یہ ساری چیزیں میسر آتی ہیں۔ اندر بیٹھے ہوئے شخص کی نسبت اوپر یہ خاص نعمت ہوتی ہے۔ جنت میں کچھ غرف ہے، اعدہ اللہ نے یہ اسپیشل تیار کیے ہیں، عام جنت سے یہ ہٹ کر ہیں، یہ وی آئی پیز کے لیے ہیں۔
लिमन अताम अत्ताम, उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तैयार किए हैं जिनका दस्तरखान वसी हो। आओ मियाँ तुम भी शामिल हो जाओ, आओ तुम भी शामिल हो जाओ, आओ तुम भी शामिल हो जाओ। जितनी कमाई है उस कमाई में अल्लाह की मखलूक को हिस्सा दो, उस कमाई में अल्लाह की मखलूक को शरीक कर लो, उस कमाई में कमजोरों को शरीक कर लो। लिमन अताम अत्ताम व अलान अल कलाम, इन कामों में से एक काम यह है अलान अल कलाम कि लबो लहजा नरम रखो, लबो लहजा नरम रखो। बात करो तो बात में सख्ती ना हो, तौहीन ना हो, इंसल्ट ना हो, चुटकियां ना काटो, तजलील ना करो, तहकीर ना करो, दिल ना दुखाओ। तुम्हारी बात में शाइस्तगी हो, मुस्कुरा कर बात करो, आहिस्ता आवाज से बात करो, इज्जत देने वाली बात करो, किसी की बेइज्जती करने वाली बात ना हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की निशानियां बताई जिन लोगों के लिए जन्नत के वीआईपी बाला खाने उनके लिए बुक किए जा रहे हैं। लिमन अताम अत्ताम व अलान अल कलाम व ताब आसियाम, और ये बाला खाने उन लोगों के लिए हैं जो रोजों की कसरत रखते हैं। रमजान के तो रखने ही है, रमजान के रोजों के अलावा भी जिंदगी में हर महीने 2-3 रोजे रख लेते हैं, हर हफ्ते में सोमवार जुमेरात का रोजा रख लेते हैं, वक्तन फवक्तन रोजे अल्लाह के तकर्रुब के लिए रखते रहते हैं। उनके लिए जन्नत के ये बाला खाने हैं। यूं मैं आपके सामने कई बातें यानी 12-13 बातें आपके सामने रख चुका हूं, जिन बातों को आप अपनाएंगे तो आपके हाथ में जन्नत की टिकट होगी, आपके साथ रब का वादा होगा कि आप इन कामों की बरकत से जन्नत में तो जाएंगे ही जाएंगे। अब इनमें से कौन से काम हैं जो आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, उनमें शौक ज़ौक़ को खुलूस को बढ़ा लें। जो काम आप नहीं करते हैं उन्हें आप शुरू कर दें, उन कामों को आप शुरू करते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबतिल जन्नत लिमन तरकल मुरा वहुव मुहिक्कुन, मैं जन्नत के सरहदी इलाकों में, जन्नत की साइडों के इलाकों में, जन्नत के नवाह में एक घर मिलने की जमानत देता हूँ उस बंदे को जो झगड़ा छोड़ देता है हालांकि वो हक पर था, बोलने की भी इजाजत थी, बदला भी ले सकता था, हाथ भी पड़ता था, मौका भी मिलता था, झगड़ा तूल देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन फिर भी वो दफा करता है, वो कहता है छोड़ो परे। फसाद को जड़ नहीं देते हैं, यहीं की यहीं मामले को खत्म करते हैं। हक पर होने के बावजूद झगड़े को तूल नहीं देता। मैं उस बंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के नवाह में एक घर की जमानत देता हूं। तो पैगाम ये मिला कि अपनी जिंदगी में माफ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, गलतियों पर पर्दा पोशी करना सीखें, झीलना, तहम्मुल ये सीखें, ईसार सीखें। इसके बदले जन्नत के एक घर की जमानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तसल्ली रखें कि कम अज कम एक घर तो है आपका ना। अल्लाह अकबर है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्नत, मैं जन्नत के दरमियान में एक घर की जमानत देता हूं लिमन तरकल कज़िबा व इन काना मिज़ाहन, मैं उस बंदे को जन्नत की जमानत देता हूं जन्नत के दरमियान में एक घर की, जो ये तय कर ले कि बाकी जिंदगी में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना सीरियस और ना मजाक में भी झूठ नहीं बोलूंगा। जो ये वादा कर ले मैं उसे जन्नत के दरमियान में एक घर की जमानत देता हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन ज़ईमुन बिबैतिन फी आल जन्नह, जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में एक घर की मैं जमानत देता हूं उस शख्स को लिमन हसन खुलुक़हु, जो अल्लाह से ये वादा कर ले कि अल्लाह पीछे जो कोताहियां हो गई हैं उनका ताना तो मुझे ना दे, उन पर शर्मिंदा तो मुझे ना कर, आइंदा की जिंदगी में मैं अपने खुलुक को अच्छा रखूंगा। जिसने ये वादा किया कि वो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देगा उसे जन्नत के इब्तदाई हिस्से में एक घर, और जिसने ये वादा किया कि वो
मजाक में भी आइंदा जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा, उसे जन्नत के सेंटर में एक घर, और जिसने ये वादा किया कि आइंदा जिंदगी में मैं खुलुक अच्छा रखूंगा, उसे जन्नत के आला हिस्से में एक घर की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के साथ वादा किया है कि रोज़े क़यामत उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, उन लोगों में से होंगे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश करनी है। आपने जो अजान का जवाब देकर दुआ पढ़ते हैं, जो अजान का जवाब देते हैं, मुअज्जिन ने अजान कही, जवाब दिया, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी, फिर दुआए वसीला पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, फिर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना, फिर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जो पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बंदे का उन लिस्टों में नाम लिख दिया जाता है जिन लोगों के लिए मैंने mahशर के मैदान में सिफारिश करनी है, जिन लोगों के लिए मैंने mahशर के मैदान में सिफारिश करनी है, उन लोगों में नाम लिख दिया जाता है। तो यूं आपके सामने मैंने कोई दर्जनों काम इस थोड़े से इख्तिसारिये में 10-15 मिनटों में आपके सामने रखे हैं। इन कामों की लिस्ट बनाएं, इसी वॉइस को, इसी आवाज को दोबारा सुने, कागज साथ रख के बैठे और सारी ये अमल नोट करते जाएं। इनमें से कौन से अमल हैं जो आपके अंदर मौजूद है तो उन पर बरकरार रहना है, जो नहीं मौजूद हैं तो उन्हें शामिल कर लेना है। अब 10, 15, 20, 30 काम आपकी जिंदगी में ऐसे हों जिनमें से एक काम पर अल्लाह ने आपको बख्शने का वादा किया हुआ है, तो कम से कम तो आपकी आखिरत महफूज हो गई। इन्हीं कामों में से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस सबा के नाम से, ये बुखारी में 5-4 मरतबा आई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में लोग खड़े हुए हैं, हिसाब की इंतजार है और सूरज मील के फासले पर आ चुका है, जमीन तांबे की तरह तप चुकी है, लोग घबराहट के आलम में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी बादशाहत है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है, करोड़ों अरबों लोग हिसाब के लिए खड़े हैं, लोग बेलिबास हैं, मर्द ख़वातीन बेलिबास हैं, लेकिन किसी को किसी की तरफ देखने का होश नहीं है। अगर सुई भी जमीन पर फेंको तो उसकी आवाज उठे, आहट नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है, गुमसुम लोग खड़े हुए हैं, कोई पैर उठा नहीं सकता, कोई कदम बढ़ा नहीं सकता, आंखें पथराई हुई हैं, आवाजें घबराई हुई हैं, कोई बोल नहीं रहा। अंबिया की जुबान पर बस इतना है, अल्लाहुम्मा सल्लिम रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, अल्लाह खैर कर, अल्लाह खैर कर, अल्लाह खैर कर। इस आलम में कुछ लोग मैदान में महशर में आएंगे तो अल्लाह के फरिश्तों की ड्यूटी होगी कि जैसे ही ये महशर में पहुंचे, इन्हें ले आओ और अर्श के साये के नीचे मिंबर बिछे हुए हैं, वहां इन्हें बिठाओ, वहां इन्हें बिठाओ। आप चाहते हैं कि आप महशर के मैदान में पहुंचें तो फरिश्ते आगे पीछे आपके हों और प्रोटोकॉल देते हुए आपको जल्दी जल्दी आपको साए में ले जाएं। वहाँ ठंडा पानी आप पिएं, हौज़े कौसर का पानी वहाँ आपको मिले, नूर के मिंबर हों, वहाँ आप बैठ जाएं, आप अल्लाह की ज़ियारत कर रहे हों। महशर के मंजर को देखने से भी आपको बचा लिया जाए, वहाँ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से भी बचा लिया जाए, वहाँ की गर्मी पसीने से भी आपको बचा लिया जाए, वहाँ की जहन्नुम के नज़ारे या हालतें देखने से भी आपको बचा लिया जाए। आप चाहते हैं कि आप उन खास और VIPs में हों, तो 7 तरह के काम हैं, कोई एक काम कर लें। इसकी बरकत से जैसे ही आप माशर में जाएंगे, बल्कि आप कब्र से निकलेंगे तो आपको सवारी दी जाएगी, फौरन आपको साए में पहुंचा दिया जाएगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरह के लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने साए में जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और जो अल्लाह का साया है वो अमन वाला साया होगा,
उसमें ऐसी ठंडक नहीं होगी कि ठंड लगने लग जाए, ऐसी गर्मी नहीं होगी कि जिस्म जलने लग जाए। वो यहाँ के एसी रूमों से और यहाँ की पुरफिजा माहौलों से और यहाँ की सैरगाहों से वो ज़्यादा पुरकशिश होगा, वो यहाँ के पुरसकून माहौल से ज़्यादा पुरकशिश होगा। आपको फरिश्ते ले जाएं, मिंबर पर बिठा दें, अल्लाह की आप ज़ियारत करें, अल्लाह से आप बातें करें, माशर का प्रोसेस होता रहे, आप बेफिक्र आपस में मुतमईन बातें करते रहें, अल्लाह की तस्बीह करते रहें। और उधर जैसे ही हिसाब शुरू हो, हिसाब शुरू होने से पहले आपको फरिश्ते अलग रास्तों से लेकर जन्नतों के दरवाजे खुलवा के आपको भेज दें। पहले ना फाइल खुले, ना तराजू लगे, ना सवालात किए जाए, ना बहस मुबासा हो, ना शर्मिंदगी हो। 7 तरह के लोग हैं, ये 7 निशानियां हैं, मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं, गुनाहगारों के लिए भी हैं और नेकोकारों के लिए भी हैं। हर शख्स के लिए ये निशानियां हैं। इन 7 में से कुछ निशानियां अपने पास रखें, उन्हें अपना लें ताकि आपकी आखिरत सेफ हो जाए, महफूज हो जाए हर तरह के खतरात से। कब्र से लेकर मौत, कब्र से लेकर जन्नत में जाने तक आप फरिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ में सुकून से पहुंच जाएं और दरमियान की सारी घबराहट से अल्लाह आपको महफूज कर दे। करना क्या पड़ेगा, मैं सिर्फ नाम गिनवा देता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 काम बताए। पहला काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, वो शख्स जो इंसाफ के फैसले करता है। हर बंदा इमाम है अपनी हद तक। मुल्क का इमाम मुल्क का हुक्मरान है, इदारे का इमाम इदारे का सरबराह है, कॉलेज का इमाम कॉलेज का प्रिंसिपल है, मार्केट का इमाम मार्केट का सदर है, मस्जिद का इमाम मस्जिद का मुतवल्ली है, घर का इमाम घर का सरबराह है, बच्चों का इमाम बच्चों की वालदा है। जिसे जितनी सरबराही दी गई है उतनी सरबराही के साथ वो इंसाफ करे। अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ, अपने काम के साथ इंसाफ, अपने मनसब के साथ इंसाफ, अपने मामूलात के साथ इंसाफ जो करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा शख्स जैसे ही कब्र से निकलेगा इसे फरिश्ते ले जाएंगे, अल्लाह के अर्श के साए में इसे जगह दे देंगे या वहाँ इत्मीनान से रहेगा। अगले दर्स में मैं इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात में जाऊँगा। और फिलहाल एक ये निशानी याद रखें, आप पंचायत में बैठे हैं, आप दुश्मन से लड़ रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया है, आप किसी से झगड़े में हैं, कभी भी बेइंसाफी की बात न करें, कभी भी बेइंसाफी का फैसला न करें। फैसला आपके हक में आ रहा हो तब, फैसला आपके खिलाफ आ रहा हो तब, फैसला आपके वालिदैन के हक में आ रहा हो तब, फैसला आपके वालिदैन के खिलाफ आ रहा हो तब। ये मोमिनाना पहली सिफत है। दूसरी सिफत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जवानी के अय्याम में अल्लाह की इबादत का शौक रखें। जवानी में अल्लाह की इबादत का शौक रखें, निगाहें नीची हों, तिलावत की रूटीन हो, अज़कार की रूटीन हो, अहले तक़वा के साथ दोस्ताने हों, मस्जिदों के साथ मोहब्बतें हों, नमाजों की पाबंदी हो, नफलों का शौक हो, अमाल खैर में जल्दी हो, इल्म के साथ वाबस्तगी हो। शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, दूसरा वो जवान जिसने जवानी के अय्याम में अल्लाह की इबादत का शौक रखा। तीसरा बंदा, वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिदी, वो शख्स है कि जिसकी मोहब्बत मस्जिद के साथ है। वो शख्स है जिसकी मोहब्बत मस्जिद के साथ है, मस्जिद की सफाइयाँ सुथराइयाँ करता है, सफ़े बिछाता है, पानी पूरा करता है, इंतजामात में लगा हुआ है, झाड़ू फेरता है, खुश होता है, फारिग होता है, मस्जिद में आकर बैठ जाता है, अल्लाह अल्लाह करता है, मस्जिद की तोसी हो इसका दिल खुश हो जाता है, मस्जिद का फंड हो इसका दिल मुतमईन हो जाता है,
मस्जिद बनाने के लिए प्लाट मिल जाए, ये बाग हो जाता है, गोया इसका अपना घर बन रहा है। मस्जिद के साथ इसकी मोहब्बत है, इसकी दोस्ती है, जिसकी मोहब्बत मस्जिद के साथ है, ये उन 7 में से एक बंदा है। पहला बंदा इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम। दूसरा बंदा वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद। तीसरा बंदा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जवानी में अल्लाह की इबादत का शौक है। चौथा बंदा वरजुलुन तसद्दक़ बियमीनिही, वो शख्स के जो अपने दाएं हाथ से सदका करता है और हत्ता ला तालम शिमालुहु मा अनफ़क़त यमीनुहु, इतने खुलूस से सदका करता है, इतने खुलूस के साथ खर्च करता है कि दाएं हाथ से खर्च करता है, बाएं को भी पता नहीं चलता, जितलाता नहीं है, एहसान नहीं जितलाता, अपनी नेकियों का जिक्र नहीं करता रहता, अपनी सखावतों का जिक्र नहीं करता रहता है, जिस पर खर्च किया है उससे शुक्रिया के अल्फाज की ख्वाहिश नहीं रखता, छुपा छुपा के नेकियां करता है, जैसे गुनाह कर रहा हो, छुपा छुपा के नेकियां करता है। ये भी उन लोगों में से होगा, जैसे ही कब्र से ये निकलेगा फरिश्ते इसे उठाएंगे, सीधे माशर में ले जाएंगे, अर्श के साए में इसे बिठा देंगे, फिर पहले ऐलान होगा, इन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा, पीछे माशर में हिसाब होता रहेगा। अल्लाहु अकबर। पांचवा बंदा वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा फिल्लाहि व तफर्रका अलैहि। पांचवें और छठे वो 2 दोस्त हैं जिनकी दोस्ती अल्लाह की वजह से होती है, फिर टूटती भी अल्लाह की वजह से है, ताल्लुक बनता भी अल्लाह की वजह से है, ईमान की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, मनहज की बुनियाद पर, नमाजों की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर दोस्ती बनी, फिर इसमें खलल आया तो ताल्लुक टूट गया। इज्तमा फिल्लाहि व तफर्रका अलैहि, ताल्लुक बने भी अल्लाह के लिए और ताल्लुक टूटे भी अल्लाह के लिए। इन 2 बंदों के लिए भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फजीलत है कि 7 किस्म के लोगों में से ये होंगे कि जिन्हें अल्लाह अपना साया देगा जिस दिन और कोई साया नहीं होगा। तिजारत की वजह से हमारे ताल्लुकात बनते हैं, मफादात की वजह से हमारे ताल्लुकात बनते हैं, टूटते हैं, पार्टनरशिप की वजह से हमारे ताल्लुकात बनते हैं, रिश्तों की वजह से हमारे ताल्लुकात बनते टूटते हैं, हमसायगी की वजह से हमारे ताल्लुकात बनते और टूटते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ताल्लुकात दीन की वजह से होने चाहिए, ये इस अलामत का पैगाम है। और 7वीं चीज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि 7वां वो बंदा है कि जिसे गुनाह का मौका मिला, गुनाह की दावत मिली और गुनाह से बचने के लिए बाज़ दफ़ा उसे कुर्बानी भी देने पड़े। बात हुई इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, पुरकशिश गुनाह की उसे दावत दी गई। वक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, उसने साफ इनकार कर दिया, ख़तरा मोल लिया, दुश्मनी झील ली, तकलीफ़ें उठा ली, इल्ज़ाम बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने दामन को बेहयाई से नापाक ना होने दिया। मौका पड़ने के बावजूद वो गुनाह से बचता रहा और अल्लाह के डर की वजह से अपने दामन को पाक रखता रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शख्स भी वो होगा कि फरिश्ते इसे ले जाएंगे, अल्लाह के अर्श के साए में नूर के मिंबरों पर इसे बिठा देंगे। इस थोड़े से दौरानिए में मैंने आपके सामने कोई 30 के करीब आमाल रखे हैं, गिनवाए हैं। इनमें से हर अमल पर आपके जन्नती होने की, माशर के मैदान में तकलीफ़ से बचने की, शर्मिंदगी से बचने की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से नवीदें सुनाई हुई हैं। इनमें से देखिए कि आपके पास कितनी हैं, जो हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन पर इस्तकामत मांगें, जो नहीं हैं उन्हें लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।